یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں تاکہ آپ کے بچوں کو نقصان نہ ہو۔ لیکن تمام ساتھی نے، آپ کے تمام رفقا نے، آپ کے تمام عزیز و اقارب نے، کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ اپنی رفیق حیات حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں شہربانو تم ایران کی شہزادی ہو، نوشیروان عادل کی پوتی ہو، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہو، تم نے اپنی زندگی کو اپنا بچپنا بڑے ہی آسائش و آرام سے گزارا۔ ریشمی گدوں پر آرام کرنے والی تھی، سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانے والی تھی، ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، تم نے اپنی ساری زندگی آسائش و آرام سے گزارا۔ لیکن جب سے میرے نکاح میں آئی، مدینہ منورہ میں آئی، تم نے بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، زندگی میں فاقے بھی گزارے، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ میں اس کے لیے تمہارا ممنون ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ کل قیامت کے دن میں نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہوں گا شہربانوں کی وفاداری سے میں خوش ہوں، لیکن اے شہربانوں کل اب جنگ ہو رہی ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، اس کے بعد تم پر بھی بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی پریشانی آئیں گی۔ اس لیے اگر تم جانا چاہتی ہو تو اپنے شہر ایران چلی جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہارے لیے انتظام کر دوں، تم اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ۔ حضرت سیدہ شہربانو اٹھتی ہے اور روتے ہوئے حضرت امام حسین کے قدموں پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے سرتاج یہ سچ ہے، میں نوشیروان عادل کی پوتی ہوں، ایران کی شہزادی ہوں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرا بچپنا بڑے ناز و پیار سے پلا ہے، میرے ایک اشارے پر نوکروں کی لائن لگی رہتی تھی، لیکن میرا جو وہ مقام تھا ایران میں، جو میرا مقام تھا، جب سے میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوئی ہوں میرا مقام اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے، میرا مقام اس سے بلند ہو گیا ہے۔ جب میں ایران کی شہزادی تھی، جب میں ایران کی گلیوں میں چلا کرتی تھی تو یہ ندا ہوا کرتی تھی، منادی کرنے والا یہ اعلان کرا کرتا تھا ہوشیار خبردار ایران کی شہزادی آ رہی ہے، تو لوگ ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ میرا مقام ایران میں تھا۔ لیکن اے حسین جب سے میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوئی ہوں میرا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ کل قبر سے قیامت کے دن جب میں جاؤں گی تو منادی کرنے والا منادی کرے گا، یہ اعلان ہوگا اے لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو، سیدہ فاطمہ کی بہو آ گئی۔ ایران کی شہزادی ہونا اور بات ہے، حضرت فاطمہ کی بہو ہونا اور بات ہے۔ حضرت شہربانو عرض کرتی ہے اور اے میرے سرتاج اگر بات قربانی کی ہے، بات شہادت کی ہے تو شہربانو کے لال فاطمہ کے لال سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اے میرے حسین کربلا کے میدان میں پہلے شہربانو کے لال کا خون بہے گا، اس کے بعد فاطمہ کے لال کا خون بہے گا۔ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج آخری وقت میں مجھے اپنے دامن سے جدا مت کیجئے، اپنے دربار سے یوں نہ نکالیے، نہیں تو کل آنے والی نسلیں مجھ کو یہ تانا دے گی آخر بیگانی تھی، آخری وقت میں مصیبت کے وقت میں حسین کو چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرات محترم یہ شہربانو کون ہے؟ یہ ایران کی بیٹی خسرو پرواز کی بیٹی ہے اور ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے نوشیروان عادل، آپ نے تاریخ میں ہسٹری پڑھنے والوں نے ضرور پڑھا ہوگا۔ نوشیروان عادل بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ اس کی بیٹی ہے، اور اس وقت ایران سب سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا، اس وقت ایران بہت زیادہ سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دور میں ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی، اسلام کا پیغام بھیجا تھا، تو اس وقت ایران کے بادشاہ نے نبی کریم علیہ السلام کے خط کو پھاڑ دیا تھا اور یہ کہا تھا اب عرب کے چرواہے ہم
हमको जिंदगी जीने का सलीका बताएंगे। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास खबर पहुंची तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिस वक्त इस तरह ईरान के बादशाह ने मेरे खत के टुकड़े किए हैं, इसी तरह ईरान के भी टुकड़े होंगे। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मौजूद थे और उसी वक्त कसम खा ली थी, जब मेरे हाथ में ताकत आएगी, जब मेरे हाथ में सत्ता आएगी तो मैं ईरान के टुकड़े टुकड़े करूंगा। हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म ने लश्कर को तैयार किया, लश्कर तैयार हुआ, काफिला तैयार हुआ और ईरान पर हमला किया और ईरान को फतेह कर लिया। ईरान के किले पर इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। ईरान के महलों में नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं गूंजने लगी। तमाम माले गनीमत जमा हुआ। इस तरह इतना ईरान को फतेह करने के बाद इतना ज्यादा माले गनीमत आया, काफी ढेर सारा माले गनीमत आया। हज़रत उमर फारूक आज़म के सामने माले गनीमत रखा है, माले गनीमत मौजूद है। हज़रत उमर फारूक आज़म माले गनीमत को देख रहे हैं। माले गनीमत को देखने के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म खुश हो गए। मदीने वालों का वो दौर था कि जब मदीने वाले पेट पे पत्थर बांधा करते थे, टूटी हुई चटाइयों पर सोया करते थे। इतना माले गनीमत आ गया है यार कि अब अरब वालों को वाक़या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब अरब वालों की जिंदगी खुशहाली में गुजरेगी। हज़रत उमर फारूक आज़म देख रहे थे कैदियों के निगाह पड़ती है, इसी तरह कैदियों में निगाह हज़रत शहर वालों के ऊपर जाती है। हज़रत उमर फारूक आज़म सवाल करते हैं, ये शहर वालों कौन है, ये और ये लड़की कौन है? लोगों ने जवाब दिया, ये बादशाह अमीरुल मोमिनीन, ये उमर इब्न खलीफा, ये ईरान के बादशाह की बेटी है, ये ईरान की शहजादी है, ये नौशीरवा आदिल की पोती है। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, इसके अंदाज से लगता है ये तमाम से मुख्तलिफ है, इसके अंदाज से लगता है ये शहजादी है। अगर ये कैदी बनकर रहेगी तो इसकी जिंदगी घुट घुट कर खत्म हो जाएगी। इसको आजाद करके किसी के निकाह में दे दिया जाए, इसकी शादी करा दी जाए ताकि ये जिंदगी किसी की शरीके हयात बनकर जिंदगी गुजारे, किसी की बीवी बनकर जिंदगी गुजारे। सहाबा ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है, क्योंकि जब इसकी जिंदगी में इसकी दो बहन थी, एक बड़ी बहन थी मेहरबानो, एक ये शहर वालों, और बादशाह ने ऐलान करवाया था, बड़े बड़े राजाओं के रिश्ते आए, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए, बड़े बड़े वजीरों के रिश्ते आए, लेकिन इसने सबके रिश्ते को ठुकरा दिया, किसी भी रिश्ते को पसंद नहीं किया। बड़े बड़े वजीरों के रिश्ते आए, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए, लेकिन शहर वालों ने किसी रिश्ते को कबूल नहीं किया। और बड़ी बहन जो मेहरबानों थी, उसकी शादी हिंदुस्तान के बादशाह हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त के साथ हो गई। मेहरबानों हिंदुस्तान चली गई और शहरबानों यहाँ नहीं। जब हमारे लश्कर ने ईरान पर हमला किया, ईरान का बादशाह कत्ल हो गया और लोग कत्ल हो गए और इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जंग का ये कानून बनाया था, अगर कोई तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे तो उस पर हमला मत करना, उस पर कत्ल मत करना। इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, इनको गिरफ्तार करके लाया गया। अमीरुल मोमिनीन, ये वो शहर वालों है जिसने बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते ठुकरा दिए, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते ठुकराए, बड़े बड़े वजीरों के रिश्ते ठुकराए। तो मदीने के चरवाहों से ये रिश्ता कैसे करेगी, ये मंजूर नहीं करेगी। हज़रत सैयद उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई के बाद ट्राई किया जाता है। हज़रत उमर फारूक आज़म शहरवानों से कहते हैं, ऐ शहरवानों, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा रिश्ता किसी से कर दिया जाए, तुम किसी की शरीके हयात बनकर जिंदगी गुजारो, किसी की बीवी बनकर जिंदगी गुजारो? शहरवानों ने कहा, यह नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को पसंद नहीं किया, मैंने बड़े बड़े वजीरों को पसंद नहीं किया, बड़े बड़े अमीरजादों को पसंद नहीं किया, तो मैं यहाँ भला किसी कैसे पसंद कर लूंगी? हाँ, ये बात है, मैं कैद में हूँ, तुम्हारी मर्जी जो करना चाहो, मैं गुलाम हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, ना, इस्लाम का कानून ये नहीं है, इस्लाम का कानून ये है कि लड़की की इजाजत होगी तभी निकाह होगी, लड़के और लड़की राजी होंगे तभी निकाह होगा, अगर तुम्हारी मर्जी होगी तभी निकाह होगा। एक बार ट्राई कर लो, अगर पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। शहरबानों कहते हैं, क्या मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, हाँ, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का हुक्म यही है, अगर तेरी मर्जी होगी तभी निकाह हो सकता है, अगर तेरी मर्जी नहीं होगी तो निकाह नहीं हो सकता। हज़रत शहरबानों फरमाती हैं, वाह इस्लाम, मेरा कानून कैद रहकर भी जिंदगी आजाद।
हज़रत शहरबानो कहती है अगर बात ऐसी है तो चढ़ाई करने में क्या हर्ज है, देखने में क्या हर्ज है, चलो मैं देख लेती हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं हाँ देख लो, अगर पसंद आए तो हाँ कर देना, अगर पसंद ना आए तो इनकार कर देना। शहरबानो कहती है मैंने सुना था उमर बड़ा जलाल वाला है, उमर बड़ा लोगों दबदबा वाला है, उमर के जलाल के सामने अच्छे कांप जाते हैं। लेकिन यहाँ तो तस्वीर बदलती हुई नजर आती है, यहाँ तो तस्वीर अलग ही नजर आती है। सहाबा फरमाते हैं वो अमीर उमर फारूक आजम के सामने शैतान कांप जाते हैं, उमर फारूक आजम के सामने मुनाफिक कांप जाते हैं। लेकिन उमर इस्लाम के कानून पर अमल करता है, कभी किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करता, कभी किसी कैदी को मजबूर नहीं करता। इस्लाम का कानून ये है। शहरबानो कहती ठीक है, अगर मेरी मर्जी की बात है तो मुझे पसंद आएगा तो ना करूँगा, अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो ना कर दूंगा, ना कर दूंगी। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं हाँ ठीक है। तमाम सहाबा बैठे हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं शहरबानो के लिए लड़का देखो, और लड़का है जिसे शहरबानो पसंद कर ले, इससे निकाह हो जाए। सहाबी रसूल कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन आपने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है, लेकिन ये कबूल नहीं करेगी। जब इसने बड़े बड़े बादशाहों को नहीं कबूल किया, बड़े बड़े वजीरों को नहीं कबूल किया, बड़े बड़े शहजादों को कबूल नहीं किया, ये मदीने के चरवाहों को कैसे कबूल करेगी। अमीरुल मोमिनीन आपने चैलेंज कर दिया है, ये इनकार कर देगी, आपकी शर्मिंदगी होगी। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात, इनकार कर दे। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं यहाँ किसी से कहते एक गिलास पानी पिला दूँ और वो इनकार कर दे मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई आप मेहमान थे, आपने इनकार क्यों कर दिया, शर्मिंदगी लगेगी। तो सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अगर शहरबानो ने इनकार कर दिया तो शर्मिंदगी होगी। वो ईरान की शहजादी है, वो बादशाह की बेटी है, वो भला कैसे मदीने के चरवाहों को कबूल करेगी। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं उमर